हाय गाइस, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सर। ओके, 1 सेकंड। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। विल फिनिश एट 6। ओके, सो हम लोग वो वाला पार्ट तो कर चुके हैं। आई थिंक और तो उसमें कुछ अब नहीं करना है। जितना हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर लिया है, दैट्स लाइक इनफ। तो आज जो है, लेट्स डू ठीक है, आज ये करते हैं। मतलब मैं इसको अभी टॉपिक तो लिख रहा हूँ, हीट इक्वेशन।
but basically this is essentially this thing. This is what we are discussing today is basically the nature of a particular type of differential equation. ठीक है, तो एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसे कहते हैं लीनियर होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हीट इक्वेशन उसका एक एग्जांपल है एक पर्टिकुलर डोमेन में, बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर अ फ्यू लेक्चर्स एक्चुअली इज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, एंड द रीजन फॉर दैट इज, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या मतलब क्या है इसका। लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड इट्स अ बंच ऑफ डेरिवेटिव्स रिटन इन एन इक्वेशन, but the important part is it is a partial differential equation, meaning to say that the quantities involved in the equation are functions of multiple parameters, coordinates, right? Basically हम physics पढ़ रहे हैं तो simply put the things that are going to occur in these equations are functions of space and time. ठीक है, एंड होमोजेनस अभी जाने दो, वो जैसे आएगा तो मैं बोलता हूँ, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, बट लीनियरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लीनियरिटी का यहाँ पे सिंपली मतलब है that all the terms that occur in this equation, whether they are the simple terms, the properties, whichever properties are there, or their derivatives, whether they are derivatives with respect to space, meaning उनका x derivative, y derivative, spatial derivatives, या उनके जो टेम्पोरल डेरिवेटिव्स हैं, टाइम डेरिवेटिव्स जो हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वांटिटीज अकर कर रहे हैं, दे आर इन द पावर ऑफ 1. So there are no quantities, none of the quantities in the equation have a power higher than 1. ठीक है, हाँ सर हायर देन 1 को अप्रोक्सीमेट मतलब अगर 2 डिग्री पावर है उसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते 1 डिग्री पावर के मतलब रिस्पेक्ट में? नहीं नहीं, कर तो सकते हैं, वो बात नहीं है, करते ही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं जिनमें कि करा जाता है। बेसिकली मैं बताता हूँ, पॉइंट ये होता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है या थर्ड डेरिवेटिव है, वो बहुत हाई वैल्यू नहीं है उसकी, या जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनकी वेरिएशंस बहुत स्मॉल है, तो हम बेसिकली कर सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच भी होता है जो कि विच इज बेसिकली अ होल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक पूरा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो जो तू बोल रहा है उसके लिए डेडिकेटेड है, हाउ टू डील विद नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस and try to get approximate solutions out of them by turning them into equivalent linear differential equations. So it's a whole mathematics in itself. It has been specifically invented for that particular purpose. And in fact, historically, वो mathematics बना है physics के motivation से. I mean, physics was the driving factor behind. Not really. I won't say that. I mean, kind of hand in hand. Because physics में भी बहुत सारे domains में non-linear differential equations होते हैं. The most famous example being the equations of the general theory of relativity. जो gravity का जो theory है उसकी जो equations हैं, जो उनके pure, जो उसके proper equations हैं, they are actually non-linear and they are notoriously hard to solve. And in fact, people basically establish entire careers on generating particular solutions of that set of differential equations. So वो सब होता है. I mean, it's all there. Depending on various situations, you can do this or that. It's all basically a bunch of mathematics. हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो हम linear equations पढ़ने वाले हैं. And linear equations, actually, if you don't go to extreme situations,
you can actually approximate a lot of stuff with linear differential equations, which is basically a lot of the commonplace phenomena that occur in life, daily life. And by which I mean like 99.99% of stuff is pretty much well described by linear differential equations. तो बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे प्रॉपर नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत होती है. तो जनरल रिलेटिविटी में भी इनफैक्ट बहुत सारे जो उसके सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे तुम एक्सट्रीम ग्रेविटी से डील नहीं कर रहे हो, वहाँ पे लीनियरिटी अज्यूम करके सॉल्व किया जाता है और रीजनेबली गुड सॉल्यूशंस जनरेट किए जाते हैं, और वो वर्केबल सॉल्यूशंस होते हैं. लाइक दे आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट स्टफ एंड दे आर यूज्ड टू मेक स्टफ एंड दैट स्टफ यूजुअली वर्क्स वेल. तो बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं obviously, for example in the vicinity of some black hole where there is extreme gravity, or most famously जो अभी current जो frontier है, which is the beginning of space and time, where everything was so close up together that it was obviously extreme of everything. तो उधर के लिए solve करने के लिए भी फिर then you have no option but to solve the proper equations, because obviously if you approximate you don't get close enough to the t equal to 0, right? तो वो सब issues होते हैं उसमें. But anyway, like I said, the linear equations are a fantastic tool for the vast majority of things that happen. तो ये अभी मैं heat equation से बता रहा हूँ, but basically you will see that this particular kind of differential equation, a linear homogeneous partial differential equation, occurs in heat, it occurs in waves, it occurs in oscillations, which are basically waves, and it occurs in electricity and magnetism. तो पूरा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थ्योरी है, अभी तुम लोग आगे चैप्टर पढ़ोगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो जो फंडामेंटली वो जो इक्वेशन है वो खुद एक लीनियर होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड तो ये सारे डोमेन जो है, which is I guess you can imagine कि pretty much covers most of stuff that happens around us. तो स्टार्ट करते हैं हम हीट इक्वेशन से. लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट द हीट इक्वेशन, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अ कपल ऑफ थिंग्स जस्ट टू गिव यू एन इंट्यूशन अबाउट व्हाट द डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स का जहां तक आइडिया है तुम्हें पता ही होगा कि जो, अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली आई मीन टू से कि इसमें जो क्वांटिटीज होंगी, जैसे अब हीट का इक्वेशन है तो उसमें टेम्परेचर वगैरह का बात हो रहा होगा, टेम्परेचर का कोई फंक्शन होगा जो कि फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होगा इन द मोस्ट जनरल केस, राइट? दैट एंड इसका टाइम डेरिवेटिव भी अगर करता होगा, टेम्परेचर टाइम के साथ अलग अलग जगह पे चेंज हो रहा होगा, और इसके स्पेशल डेरिवेटिव्स भी अगर करते होंगे, मीनिंग टू से दैट at a particular instant of time the temperature would also be varying in space. So this is the generalized situation, ठीक है, राइट? तो अब टाइम डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि टाइम डेरिवेटिव जो है एक फेयरली सिंपल कॉन्सेप्ट है. टाइम एक पीछे से एक पैरामीटर कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो उसमें जो उसके अगेंस्ट जो रेट ऑफ चेंज इस प्रॉपर्टी का ट्रैक किया जा रहा है एज द टाइम डेरिवेटिव, राइट? बट स्पेशल डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. जो पहला स्पेशल डेरिवेटिव होता है, जो विच फॉर एग्जांपल लेट्स से इन द एक्स डायरेक्शन यू टॉक अबाउट dt by dx, that basically tells you at, and obviously it's a property at a location, right? Now we are discussing local stuff, so everything is a property at a place, right? So the टेम्परेचर बताएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताएगा. हाँ, तो ये उस लोकेशन पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज बेसिकली क्या है कि इस जगह पर इस समय अगर तुम x डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप लोगे तो कितना गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कंपेयर टू वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम. दैट इज रियली व्हाट इट इज सेइंग. इट इज बेसिकली जस्ट द स्लोप ऑफ द टेम्परेचर इन द x डायरेक्शन, और द more technically what you said, it is the gradient of temperature, it is the x gradient of temperature. Similarly you can have the y gradient of temperature and the z gradient of temperature. Naturally you understand कि जब हम स्पेशल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, यानी dt by dx कर रहे हैं, dt by dy, dt by dz कर रहे हैं, तो हम टाइम को कांस्टेंट मान रहे होते हैं. उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है that I mean, एक तो obviously operational meaning ये है that as you differentiate you treat t as a number, like a constant. The reason for that is to be able to move through space and look at the spatial variation of something, like in this case temperature, you would have to pause the passage of time in some sense, because if the situation was ongoing and you started to move in x, then as you move to a different place it would be difficult for you to tell how much of that change in temperature that you have seen
has occurred due to your movement in space and how much of that is simply due to the passage of time, कि भाई जिस जगह मैं पहुंचा हूँ उस जगह टेम्परेचर एनीवे टाइम के साथ चेंज हो ही रहा था, 1 डिग्री और गर्म होने वाला ही था, प्लस वो जगह मेरे प्रीवियस लोकेशन से 2 डिग्री ऑलरेडी गर्म था, तो अब मैं पहुंचा वहां पर तो 3 डिग्री गर्मी हो गया है, तो अब इट्स हार्ड फॉर मी टू फिगर आउट हाउ मच ऑफ दैट 3 is due to me moving to a new location and how much of that 3 is simply because I mean everywhere it's become hotter, right? So in that sense you kind of pause time and treat the time variable as a constant, and similarly when you're doing the time derivative you treat the position coordinates as constants, meaning to say you stop at a place, you don't change your xyz, you have to stop at a particular place and then you have to allow time to pass. So time is a variable, time is passing, and then you see how hot it gets every second or whatever. ठीक है, that's the meaning of the partial derivative, जिसको हम notate करते हैं with this particular kind of d. ठीक है, अब what I really want to talk about here is the second derivative of in space. मैं x लिख रहा हूँ but you can imagine y z में भी same कहानी होगा. इसका जो implication है वो ये है कि just as the first derivative is the, I mean, एक तो mathematical meaning है कि obviously it's the rate of change, so this is the rate of change of the rate of change, that is obviously true, but it will help to have a visual idea of what this really means. So just as you have the sense of a slope of a line when you look at the first derivative कि कितना steep line है उधर में, वो first derivative होता है कि ये जो है ये first derivative है, large first derivative है, ठीक है, this is a large first derivative and this is a zero first derivative, no slope and slope. This has to do with the curvature of that quantity. So this basically says this has 0 second derivative, but this also has 0 second derivative because they're both straight lines, and if you take y equal to mx plus c and differentiate it twice, you are left with nothing. So basically these two, I mean, this has a large first derivative and this has a 0 first derivative, but they both have 0 second derivatives because they do not have, in that sense, the second derivative is essentially quantifying the curvature locally, and of course you're doing it at a place, so it's essentially quantifying the curvature of whatever quantity you're talking about. Now of course temperature का curvature का क्या meaning है? Temperature का जो function है उसके curvature की बात हो रही है space में. Temperature property का तो कोई curvature नहीं है, लेकिन अगर temperature as a function पूरे space पे overlaid होता and you could see it, then this quantity is measuring how the temperature is, let me actually just give you the formal definition, formal meaning of it. This basically tells you, this basically tells you how different T is at X compared to its neighborhood. This is just a long-winded way of saying we are measuring the curvature. So for example, something that has something like a straight line has no no curvature, because if this is the location X, then you are not compared to its neighborhood, but compared to the average of its neighborhood. Average, that's the key thing. For a straight line, right? So if you are at this X, and this is some X plus delta X, and this is some X minus delta X, then this, whatever this function is, let's say T as a function of X, has 0 second derivative or has 0 curvature. What that means is that your value is always the average value of your neighborhood. Right? Make sense? But if yes, sir. Okay. But if you take a curved function like this, let's say, ठीक है, तो अब इस केस में क्या है कि तुम्हारा जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर तुम ये वाला x पे लोकेटेड हो, तो तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे नेबरहुड का एवरेज नहीं है, जितना तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे नेबरहुड के एवरेज से, लेट्स से
this is one place and this is the other place. So the average value would have been this value. I mean, this line is not there. I'm just drawing it for reference. So how different are you from the average value quantifies the second derivative, tells you the curvature. The more you differ from the average value, the more curvature there is. ठीक है, make sense? Yes, sir. And when you have stuff like this, when you have this kind of a situation, then this is a high positive curvature, large positive curvature, or large positive second derivative. When you have a situation like this, then you have a moderate but positive second derivative. A situation like this means 0 second derivative. This is a small negative second derivative, and this is a large negative second derivative. तुमको याद होगा कि ये तुम कंडीशन लगाते थे मिनिमा का, मैक्सिमा का, सेकंड डेरिवेटिव बीइंग नेगेटिव, मैक्सिमा का कंडीशन होता था, बिकॉज वो ये बेसिकली बता रहा होता है कि तुम ऐसी जगह पे लोकेटेड. तो this is large positive curvature and this is large negative curvature. ठीक है. And again, it's not necessarily the curvature of a physical thing, though it can be. जैसे जब हम वेव्स में बात करते हैं, उसका जो लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उधर जब हम ये कर्वेचर, जब सेकंड डेरिवेटिव आता है, तो वो किसी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर का सेकंड डेरिवेटिव नहीं होता, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का सेकंड डेरिवेटिव होता है. And so the second derivative over there is literally the curvature of the medium. Like for example, if you have a wave propagating on a stretched membrane, two-dimensional wave, like the surface waves on water. So the surface of water has surface tension, which is like an elastic surface. And so when that surface flexes, that's a variation in Z, let's say, as a function of X, Y, and T. Right, it's a two-dimensional wave, so I only need X and Y to locate a point on the surface of water, and time tells me where it is in Z. So when this equation is formed and you get like second derivatives of this thing with X or with time, that is not just a curvature in a function, that is literally the curvature of the physical thing, which is the surface of the water. So it describes the shape, literally the shape of that thing. So when we talk about physical media like water or strings or any other physical medium, and we have the wave equation, then it is a very physical thing. The second derivative is telling you a very physical thing. It is literally the curvature of that thing itself. But in an equation like the heat equation, or in the electromagnetic equations, where this will be replaced by the electric field or the magnetic field, which are not physical quantities or physical things that you can actually, I mean, they are physical quantities, but they are not physical objects that you can see or detect directly. So it's not a curvature in that sense, but it is still going to behave like a curvature. It is still like a membrane, and it still has that property which any physical membrane has. If the equations are the same, if the equations behave the same way, then the mechanics of these abstract quantities is also like the mechanics of some kind of an elastic membrane. Okay. So we can give temperature. We can relate that to we can relate it as the height in z-axis. Yes, correct. You can think of temperature, and it's a pretty useful idea to think of temperature as like if you're describing a two-dimensional situation. And obviously, and you must have seen plots, right? कभी-कभी plot बनाते हैं, उस z direction में temperature plot करके heat दिखाते हैं कि इतना गर्म है, उतना ठंडा है. So obviously, that is like a terrain of temperature. Temperature is not really a physical thing which you can see with your eyes, but you can plot temperature if you are plotting over a two-dimensional space, like let's say the floor of the room, right? So maybe it's unevenly hot because of whatever, there's sunlight falling on some corner of it, and there's some cold bottle sitting on the other side of the room. And so the floor has different temperatures in different places, like a heat map, right? So the heat map is one visualization where you color different parts of the floor in different colors to show the temperatures. The other visualization would have been you raise the floor at every location XY in proportion to the temperature there in the Z direction. Like you lift up, basically put like a small millimeter grid on the floor first.
एंड देन यू मेक दोज कट्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स कट कर दो पूरे फ्लोर में, and then you lift them up in the z direction in proportion to whatever is the temperature. So once you're done doing this all over the place, and in the limit that the grid basically tends to 0, the grid size, you will have a smooth terrain. That terrain is basically a visual representation of how the temperature is varying over that two-dimensional floor. But you're obviously lifting it up in 3D to be able to inspect it. So you can, of course, treat temperature as a height, and literally the curvature then would mean the curvature of that terrain. And so whatever intuition you get from the terrain and its curvature and what should happen at a particular curvature and so on is an intuition that you can carry forward into the temperature idea. Okay. So in any case, ये basically just a basic background on what the derivatives are. ठीक है. थर्ड डेरिवेटिव जो है वो भी इंटरेस्टिंग है. ऐसे तो सारे डेरिवेटिव्स इंटरेस्टिंग है. थर्ड डेरिवेटिव की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कभी, लेकिन फिर भी अगर तुम ये बोलो कि फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, सेकंड डेरिवेटिव कर्वेचर होता है एट अ प्लेस, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? आई मीन डोंट से स्लोप का स्लोप और सम अदर वेरिएशन ऑफ दैट, ऑब्वियसली कर्वेचर का स्लोप नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मत बोल. इस सेंस में बोल जैसे इसको कर्वेचर बोला तो कुछ नई चीज बोली हमने. आई मीन ऑफ कोर्स कुछ खास नया नहीं है, क्योंकि तुम कह ही रहे हो कि स्लोप का स्लोप है. अब स्लोप जो है वो एक ऐसा चीज होता है, तो स्लोप का स्लोप यानी स्लोप का रेट ऑफ चेंज से कर्वेचर तो बनेगा ही. तो लेकिन एटलीस्ट कर्वेचर बोलने से कुछ नया इंट्यूशन मिला हमें लाइफ में इसको देख के कि हाँ कर्वेचर है. ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव को अब तुम बोलोगे कि कर्वेचर का रेट ऑफ चेंज तो ठीक है, गलत तो नहीं है, ऑब्वियसली व्हाट कैन आई से, इट्स करेक्ट. या तुम बोलोगे कि स्लोप का सेकंड डेरिवेटिव है वो स्लोप का कर्वेचर है या कर्वेचर का स्लोप है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर करेक्ट, बट लाइक इज देयर अ डिफरेंट, इज देयर अ न्यू वर्ड यू कैन पुट ऑन इट? Are you able to imagine first what the third derivative? What would it mean for a function to have a large value of a third derivative at some place? Like a function having a large value of the first derivative would mean it's like steep, or a small value means it is flat, horizontal, I mean relative to some xy. A function having a large second derivative would mean something like this, and a small second derivative would mean it's locally flat, right? What would a function having a large value of a third derivative at a place mean or look like? What? A slight change in the curve. ऐसा? ऐसा कर्व में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई वैसे. फिर कर्वेचर पॉजिटिव हो रहा है मतलब. बेसिकली क्या होगा? हाँ ठीक है, वैसे भी कह ही सकते हैं. उसके लिए भी एक टर्म होता है, उसको स्क्यू कहते हैं. मतलब जैसे तुम अगर एक फंक्शन पकड़ो जो ये एक ऐसा जगह है, ठीक है, मान लो पैराबोला का बॉटम पकड़ लो. पैराबोला के बॉटम पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है? 0. राइट? मतलब अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक पैराबोला है तो यहाँ पे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है. ठीक है. सेकंड डेरिवेटिव क्या है? वो तो ऑब्वियसली 0 नहीं है. राइट? थर्ड डेरिवेटिव एक बार रिपीट करो. मैं कह रहा हूँ कि मान लो पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला है, तो ये जो इसका बॉटम है यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लार्ज वैल्यू है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, राइट? ये जगह पे बिकॉज हाई कर्वेचर है, सबसे ज्यादा कर्वेचर है. यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव कम होगा. या साइन फंक्शन ले लो, दैट्स अ गुड एग्जांपल बिकॉज इट हैज बोथ काइंड्स ऑफ. इफ आई टेक द साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का यहाँ पे लार्ज नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, राइट? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पूरा कौन लिखिएगा बार बार, राइट? एफ ले लेते हैं, लार्ज नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव है. अग्रीड? यस सर. वैसे फंक्शनली भी देख ही सकते हो. अगर ये साइन एक्स का प्लॉट है तो यहाँ पे जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू खुद +1 है, वहां पे साइन एक्स का सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, तो उसकी वैल्यू -1 होगी, विच इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नेगेटिव वैल्यू इट कैन हैव. एंड सिमिलरली जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1 है, वहां पे उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस साइन एक्स यानी +1 होगी, विच इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इट कैन हैव. और जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है, वहां पे उसका सेकंड डेरिवेटिव
भी 0 होगा क्योंकि वो खुद sin x है विद माइनस साइन। सर साइन भी चेंज करेगा उसका सेकंड डेरिवेटिव। हाँ साइन चेंज हो रहा है ना। सर इन दोनों के बीच में थर्ड डेरिवेटिव काफी बड़ा होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो थर्ड डेरिवेटिव है ना, किसी भी जगह पे थर्ड डेरिवेटिव बेसिकली ये बताता है कि क्या ये फंक्शन ऐसा है या ये ऐसे है या ये ऐसे है। इट्स अ स्क्यू अबाउट दैट पॉइंट, and the more that skew is, the larger is the value of the third derivative. ठीक है, इस सेंस में थर्ड डेरिवेटिव कैप्चर कर रहा होता है इस क्वांटिटी को। बट एनीवे मेरे को क्या है, थर्ड डेरिवेटिव वापस से इसका कॉस हो जाएगा राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ 0 हो रहा है तो साइन तो ऐसा ही फंक्शन है कि थर्ड डेरिवेटिव फिर कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 है तो यहाँ पे उसका स्क्यू 0 है, तो ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट। लेकिन कोई ऐसा लॉपसाइडेड फंक्शन उठा लो, इफ यू कैन मेक अ इस टाइप का, इसका यहाँ पे बहुत लार्ज थर्ड डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो एनीवे ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हम बेसिकली जिस पे डील करने वाले हैं वो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाली है उसमें सेकंड डेरिवेटिव्स होने वाले हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स होने वाले हैं या सेकंड डेरिवेटिव्स होने वाले हैं। प्राइमरली सेकंड डेरिवेटिव्स होने वाले हैं, तो हम एक तरीके से उस टाइप की इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसमें सेकंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल तुम बाय द वे पढ़ चुके हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी टाइप की इक्वेशन है। इट इज दैट इक्वेशन ओनली। इट्स अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज एवरीथिंग हैज अ पावर ऑफ 1, but the only difference is it is not a partial differential equation because x is simply a function of t. So it's a regular differential equation. It's a linear first order तो चलो ठीक है वो जाने दो, सेकंड ऑर्डर बताता है कि कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है। लेकिन ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टाइम, राइट। बट अब जैसे तुम अभी वेव पढ़ रहे हो तो वेव में तुमने देखा होगा, वेव इक्वेशन तुमको बताया गया होगा या पढ़ लिया है तो तुमने देखा है उसमें कि वो जो y है वो फंक्शन ऑफ x एंड t होता है, और उसकी जो इक्वेशन बनती है उसमें y का x डेरिवेटिव भी आता है और y का टाइम डेरिवेटिव भी आता है, तो उसको हम रिलेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उसी टाइप की चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली द काइंड ऑफ इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर गोइंग टू रिलेट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी time derivatives to the space derivatives, usually the second space derivative meaning the curvature over space. तो एक तरीके से अगर तुम इंट्यूटिवली यहाँ पे समझ जाओ सीन क्या है तो फिर आगे के लिए जो है बहुत मतलब मुझे कम बोलना पड़ेगा, और इन द सेंस ऑफ लाइक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ स्टडीइंग दिस। वी आर नॉट रियली ट्राइंग टू सॉल्व द होल इक्वेशन, वी विल नॉट, I'll not actually get into solving. I mean, I'll tell you how to solve the equation. Basically, one method we'll look at roughly. But generally speaking, differential equations का theory अपने आप में पूरा mathematical theory होता है, and various methods exist to solve differential equation. That's something you study in your first, second year of mathematics in engineering. So basically, what we are trying to do is relate the time derivatives to the space derivatives, which is to say that you're trying to relate the curvature of something to the time rate change of that same thing at a place. How is the curvature, meaning how different that value is from its neighborhood, and how rapidly is it changing with time. तो बेसिकली एक डायनेमिक सिचुएशन हो गई, एंड यू कैन इमेजिन कि ये क्यों इतना सारा फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहा होगा, क्योंकि थिंक अबाउट वेव्स, थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थिंक अबाउट हीट इक्वेशन, वेयर थिंग्स आर चेंजिंग with time, and as a result of them changing with time, their distribution over space is also changing. As the region becomes less hot, as the heat flows away from that place, which is the time rate change, the value of the temperature at that location also starts to approach the average value of the neighborhood, meaning to say it just kind of starts to achieve thermal equilibrium with its neighborhood in some sense, right? So उस टाइप का चीज को कैप्चर करते हैं ये इक्वेशंस, जो कि काफी कॉमन है फिजिक्स में, वेव्स में भी यही चीज हो रहा होता है. So with this background, let us actually go to the heat equation. हम उसका पूरा डेरिवेशन देख लेते हैं. एक्चुअली इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू सी आल्सो, बिकॉज दिस डेरिवेशन इज क्वाइट कॉमन इन द सेंस ऑफ इस डोमेन का ये डेरिवेशन एक तरीके से तुम समझ सकते हो स्टैंडर्ड है. लाइक इफ यू जस्ट स्विच द सिंबल्स और मूव सम टर्म्स अराउंड और
सिंपली से कि अच्छा अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में है तो ये टर्म तो होता ही नहीं होगा उधर, इसका कुछ मीनिंग नहीं है तो ड्रॉप कर दो. लाइक इफ यू टेक अ जनरलाइज्ड अप्रोच टू द डेरिवेशन and you account for every possible thing that could be a cause of change and you write that equation, then you have a kind of a generalized equation relating the time rate change of something to the spatial change of that thing. Then depending on the domain, whether it's waves, whether it's heat, whether it's electricity, magnetism, one or the other term might be not there, right? Domain to domain. तो हम हीट के लिए कर लेंगे डिराइव इसको. तो हीट इक्वेशन जो होता है, हीट का जो इक्वेशन होता है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसमें सीन बताता हूँ. ये है कि अच्छा, लेट मी ऑल्सो से वन फैक्ट. दिस इज नॉट द इक्वेशन विच इज कॉल्ड द रेट लॉ, और जिसका एक्चुअल करेक्ट नाम जो है फूरियर लॉ है, जो हम कंडक्शन में पढ़ते थे, जो होता था dq by dt इक्वल्स टू माइनस कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वन डायमेंशनल है अगर तो dt by dx. ये एक अलग टाइप का इक्वेशन है. ये और जो हीट इक्वेशन है जो हम अभी डिराइव करने वाले हैं, वो इन कंजंक्शन यूज किया जाता है टू सॉल्व द एंटायरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. हम लोग एक तरीके से जो पढ़ रहे हैं जेई के सिलेबस में, हम लोग केवल ये पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तरीके से जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं आर एक्चुअली I mean by the time they come to us they are already solutions of the heat equation. You understand what I mean by that? Yes sir, वो ऑलरेडी थोड़ा सिंप्लीफाई करके देते हैं. हाँ, इन द सेंस ऑफ कि कुछ कंडीशंस लगाया जा चुका है सो दैट एक सिचुएशन इमर्ज हो गया है कि अगर ये प्रॉपर्टी का वैल्यू ये होगा और इसका वैल्यू वो होगा तो ऐसा कुछ हो रहा होगा. अब वो जो ऐसा कुछ हो रहा है उसके अंदर भी उस कॉन्टेक्स्ट के, आई मीन नैरोइंग डाउन दैट कॉन्टेक्स्ट, विद इन दैट आल्सो सम प्रॉपर्टीज माइट बी चेंजिंग and that is then presented to you as a problem which then only requires you to apply this equation. तो तुम्हें पता है ये equation in particular holds for steady state, meaning nothing is changing with time, one dimensional, meaning nothing is changing in y and z, conduction also with no generation. इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल के अंदर ये कंडक्शन हो रहा है उसके अंदर ही हीट सोर्स नहीं है, वो खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक कंडक्टर है. तो जबकि नॉर्मली स्पीकिंग क्या होगा, आई मीन इफ यू टेक द फुल स्केल सिचुएशन इन लाइफ, neither is a situation steady state because on a long enough time scale nothing is a steady state situation. Everything is changing. Even the height of Mount Everest, if you look at the if your time scale is 10,000 years, then that is also not a steady state situation, right? Because the height is constantly changing. So it depends on the time scale. What you mean by steady state? Steady state जो है वो एक टाइम, पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके उसके अंदर जब एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ बहुत स्लो होता है तो हम उसको स्टेडी स्टेट मान लेते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू आर अप्लाइंग हियर. देन यू आर आल्सो सेइंग दैट 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में नहीं वो हो रहा है, तो इसलिए 1D है और जनरेशन नहीं हो रहा है. जबकि रियलिटी में इफ यू थिंक अबाउट लेट्स से अ वायर कैरिंग करंट, द वायर इज इटसेल्फ हीटिंग अप, राइट? सो वायर के अंदर करंट है तो वायर के अंदर उसके वॉल्यूम में लोकली हर जगह पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. And as the wire heats up due to that current, that heat has to go somewhere, and that heat will, I mean, based on the situation, it will kind of radially go away from the center of the wire towards the outsides, which is a radial conduction. And then once it reaches the surface, it will then use either the mechanism of conduction through air, convection through air, or radiation. All of them will actually be occurring at the surface, right? So ये जो सिचुएशन है ये वो सिचुएशन है जिसमें जनरेशन है, जो कि ज्यादातर होता है. लाइक द थिंग which is conducting the heat is also the producer of heat locally. Heat is being produced there and also being conducted in the same region of space. तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं जेई के लिए उसमें जनरेशन नहीं होता है. वो जो ऑब्जेक्ट होता है, रॉड है या सिलेंडर है, इवन व्हेन यू डिड द रेडियल प्रॉब्लम where you are given some kind of a thing, cylinder, you're told that the reservoir is exclusively here and here. The material itself is not a producer of heat, is not a generator of heat. It's just simply a आपने हाँ, तुम्हारा वॉइस कट रहा है. आपने एक टॉपिक पढ़ाया था ना जेई में, हाँ, फिर 1D कंडक्शन विद जनरेशन.
मैंने पढ़ाया था क्या? फिर उस पे एक प्रॉब्लम दिया था, मतलब स्फीयर का सिमेट्री यूज करके करना था। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, तो एक प्रॉब्लम किया होगा, मे बी कराया होगा, वो वही बात, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अभी हम जो बात करें, अब हम उसका जनरलाइज सिनेरियो देख रहे हैं। वो हो गया बेसिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री यूज करके तुम उसको सॉल्व कर रहे हो। वो करेक्ट याद आ गया मेरे को, वो पूरे स्फीयर के अंदर हीट जनरेशन हो रहा है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बट जनरली स्पीकिंग वो मैंने बता दिया था ऐसी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यू आर नॉट in the JEE syllabus. You are supposed to do only this, what I've written here: no generation, steady state, meaning nothing changes with time, and only one dimensional convection. When any of these conditions are removed, the situation becomes quite complicated mathematically. I mean, a differential equation has to be solved, and usually most differential equations are quite difficult to solve. अब वो भी अलग अलग बात है कि कौन सी कंडीशन हटाने से कितना ज्यादा पेन हो जाता है। जैसे अगर तुम जनरेशन का कंडीशन हटा देते हो, यानी तुम स्टेडी स्टेट कर रहे हो, तुम 1D रख रहे हो और जनरेशन ऐड कर दे रहे हो, तो फिर भी रीजनेबल है, डिपेंडिंग ऑन इफ द सिचुएशन हैज एनफ सिमेट्री, इट इज स्टिल मैनेजेबल without a lot of mathematics. So an example of that was that sphere problem. If you remove the one dimensional condition, let's say you say नहीं generation तो नहीं हो रहा है, steady state भी है, but let us do a proper two dimensional. What I mean by that is you have a plate, but not only is there some temperature here and here, but also maybe here. So which is to say that heat would have like a proper two-dimensional flow, to describe which you would need to say the heat current at a place is a vector instead of simply being a scalar like this in X. So this also gets fairly complex. The differential equation is quite complicated. And if you say, I will have no generation, I will have one dimension, but let me at least look at things changing with time, then the time derivative is going to show up. And that's your partial differential equation. This is the kind of thing that we will do. We will also not solve the entire thing. I mean, maybe except a couple of very simple cases. But then the time derivative will show up. And that also usually makes things quite complicated. Okay? Although not as complicated as this case. Usually, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अलग-अलग situation में अलग-अलग होता है, but generally speaking, the removing the one-dimensional condition usually makes the thing much harder to solve. Like this situation is quite इसलिए अलग-अलग फिर लोगों ने मॉडल बना रखे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, और करना ही पड़ता है obviously in some realistic engineering scenario. ये बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है to for people who are basically doing stuff like microchip design. So a lot of their work is about solving. I mean, at this stage, nobody solves anything really. There's like software for everything. It is already fed up with a lot of existing really good industry level models, which given a certain initial condition and boundary conditions and situation will generate pretty good solutions, approximations, right? But in principle, what they're doing is they're solving a two-dimensional heat transfer problem. Okay? They are generally solving it in a steady state, because they are kind of solving it by assuming that the chip is working at its full capacity or at some rated 80% capacity and is just working at that capacity for a long enough period of time. So they're not really directly dealing with change in temperature with time, but they are definitely dealing with the fact that things are, I mean, a motherboard is fundamentally a two-dimensional thing. Even if you ignore the heights of the components, you still have to deal with how heat is going to flow on that motherboard and whether it's going to reach places where you don't want it to reach and all. So they have to deal with this kind of stuff a lot. So in any case, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ये सब 2D वूडी में कुछ नहीं करना है हमको. We are only going to look at one-dimensional conduction, but we will look at what happens if it is not a steady state. So we will get the time derivative into the scheme of things, and we will also get the generation part there. ठीक है? तो ये तो situation है. And also let me say this, ये जो चीज है, ये एक टाइप का एम्पिरिकल इक्वेशन है, जबकि जो हम अभी डिराइव कर रहे हैं हीट इक्वेशन, वो एक
you could say it's a formal equation. I mean, that it can be derived from first principles. Like it is not to say that it is a correct equation in every context, but you are starting from some principles like conservation of energy, and by just writing more and more mathematics, you will get to an equation. So there is a derivation for it, which can be written down on a piece of paper. This is not that kind of an equation. This is in the category of stuff like Ohm's law and all, where this is basically a kind of a mathematical expression of things that have been observed. Okay, so it's not like you can actually derive it or anything. It's just a fact about stuff in the real world. So you take your heat equation, which is expressing some fundamental part of reality like conservation of energy, and then you take this observational fact about how heat flow occurs, and then when you combine them, you get solutions to various specific realistic situations. Okay, fine. So anyway, let us actually do that. तो हीट इक्वेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल और लाइक आई सेड, मैंने बोल तो दिया पहले ही, फिर मैं बोल देता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है ये काफी जनरलाइज डेरिवेशन है, राइट? आई मीन अभी तो हम हीट इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, लेकिन यही काइंड ऑफ रीजनिंग करते करते तुम वेव इक्वेशन भी निकाल सकते हो, और बहुत सारे और लाप्लास इक्वेशन जो सरफेस टेंशन में तुम लोग पढ़ते हो, वो मेम्ब्रेन का कर्वेचर, दैट्स आल्सो रिलेटेड टू दिस, दैट्स आल्सो सेकंड ऑर्डर मीनिंग सेकंड डेरिवेटिव linear differential equation. So all of these equations about curvatures of things, whether it's a curvature of a physical thing like a membrane or a string, or it's a curvature of an abstract quantity like temperature or electric field, they are all in this category where I'm doing this derivation. The reasoning is pretty much the same. ठीक है? तो सर सरफेस टेंशन में कौन सा होता है इक्वेशन? सरफेस टेंशन में ये वाला इक्वेशन होता है ना, तुमने पढ़ा होगा कि अगर एक मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास कोई टाइप का, जिसका कर्वेचर है कुछ, जिसको तुम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नाप सकते हो विद R1 एंड R2। हाँ सर, याद आ। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, उसके अक्रॉस जो प्रेशर का डिफरेंस है, वो जो है वो एक कांस्टेंट, जो उधर के केस में सरफेस टेंशन है, बट इट्स रियली रिलेटेड टू व्हाटएवर इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ इन दैट मटेरियल. So it could be the surface tension, but it could also be the physical strength of rubber if this is a rubber sheet. That is what makes it also a wave equation. Whatever is the force per unit length quantity. And then you have the radii of curvature, but the radii of curvature are really just the second derivative, right? You understand? Yes, sir. So that's also this kind of equation. It is in the nature of this kind of equation. It's a steady state equation. Nothing is changing with time. So the time derivative goes away. So it relates something about curvature to something else. बेसिकली अगर वेव इक्वेशन में से तुम टाइम का वेरिएशन हटा दोगे ना, तो वो यंग लाप्लास इक्वेशन बन जाता है. तो अब इसमें करना ये है कि एक हम क्या कर रहे हैं, हम तुम अज्यूम करो कि तुम एक बहुत इनफाइनाइट, मतलब पूरा यूनिवर्स जो है इज फिल्ड अप विद सम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ होमोजेनस कंडक्टिंग मटेरियल. ठीक है? तो उस यूनिवर्स में तुम एक x, y, z पे लोकेटेड हो. तो वहां पे सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कंट्रोल वॉल्यूम पकड़ना है. कंट्रोल वॉल्यूम से मेरा मतलब है सम स्मॉल वॉल्यूम विच इज बेसिकली dx by dy by dz. ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल वॉल्यूम. और इस कंट्रोल वॉल्यूम में ऑब्वियसली मटेरियल भी आ रहा है. जिस मटेरियल में हम बैठे हैं वो मटेरियल इसमें अंदर भी है, हर तरफ है. और अब जो है हम क्या ट्रैक करना चाहते हैं कि हम इस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखने वाले हैं. दैट्स इट. दैट्स रियली जस्ट इट. द हीट इक्वेशन इज रियली नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम. तो ये जो इसका डिमेंशन है इधर में, ये dx है. तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ऐसे, और सिमिलरली ये dy है और वो dz है. ठीक है? dy ले लो और dz ले लो, ये y ले लो, z ले लो. फाइन.
Yes, sir. And I will assume that there is generation. So later when there is a situation, if there is no generation, I will make the generation term 0. फिर तो So, 3-dimensional generation पढ़ रहे हैं ना सर? हाँ, 3-dimensional generation conduction. और steady state achieved है? नहीं, steady state नहीं है. ठीक है सर. Steady state नहीं है, meaning to say कि इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो मटेरियल आ रहा है, एक जो इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ पर है, उसका टेम्परेचर टाइम का फंक्शन है. सर मतलब वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हाँ, करेक्ट. तो हम ये सारी क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने वाले हैं कि हीट के फ्लो में ये बैठा हुआ है. हीट का फ्लो जनरल है एकदम. हीट इस मटेरियल में कुछ भी टाइप से जा रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है. तो वो हीट जो है इसमें किसी भी इस लोकेशन पे ऑब्वियसली एक वेक्टर की तरह है और वो तीनों डायमेंशन में है. तो बेसिकली वो जो हीट फ्लो हो रहा है वो उसका एक एक्स कंपोनेंट है. और क्योंकि हीट फ्लो एक्स में वेरी भी हो रहा होगा, मतलब कि करंट जो है वो एक्स में भी हर जगह सेम नहीं होगा. वो इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों चीजें मैंने ओपन रखी हैं. एक तो मैंने ये ओपन रखा है कि इसका टेम्परेचर बदल सकता है, इसीलिए अगर इधर से कुछ हीट करंट एंटर किया और इसने कुछ हीट अब्जॉर्ब कर लिया तो इसका टेम्परेचर बदल रहा होगा उस कारण से. इसीलिए जो हीट करंट इधर से निकलेगा वो इससे डिफरेंट होगा. सो और ये क्योंकि हर जगह लगाया जा सकता है डब्बा, तो बेसिकली हीट करंट इज अ वेरिएबल अलॉन्ग एक्स एंड सिमिलरली अलॉन्ग वाई एंड जेड. सो द हीट करंट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जी. फाइन. हमारे वाले केस में होता था जब हम पढ़ रहे होते थे, वो इसका स्पेशल केस है. तो उसमें तुम देख रहे थे कि dt by dx जो है बेसिकली, इफ यू रिमेंबर, कि कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और आई हम कांस्टेंट कहते थे स्टेडी स्टेट में. तो जो हीट करंट है वो खुद एक्स वाई जी का फंक्शन है. मीनिंग टू से एज द हीट अराइव्स फ्रॉम द लेफ्ट फेस लेट्स से and it enters this control volume and then it exits from the other face, maybe it is more or less than before. Why would it be more or less than before? Because of two reasons. One, the material inside the control volume is first of all absorbing or releasing heat. This part will be expressed by the equation mc delta t. कुछ उसका मास है, कुछ उसका हीट. तो ये बेसिकली हीट कैपेसिटी वाला डोमेन हुआ कि इस मटेरियल का कुछ हीट अब्सॉर्ब करने का क्षमता है या हीट छोड़ने का कुछ कैपेबिलिटी है. तो वो ये इसका हीट कैपेसिटी से कंट्रोल होगा कि कितना हीट ये रख सकता है अपने पास. और दूसरा, इसके अंदर जनरेशन हो रहा हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये हो गया जो मैंने एग्जांपल लिया, इस वायर में कॉपर के अंदर हीट का जनरेशन भी हो रहा है करंट से, और कॉपर का कुछ हीट कैपेसिटी भी होता है. सो एज द हीट फ्लोज, the small pieces of copper keep some heat for themselves, and based on the heat capacity of copper, they also then as a consequence become somewhat hot or somewhat cold. ठीक है. So ये दोनों चीजों को मुझे इक्वेशन में डालना पड़ेगा. और लास्टली करंट को लेना पड़ेगा कि करंट इधर से आया और अंदर घुसा और इधर से निकला. तो अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं, जो घुसा और जो निकला, और उनमें कुछ मेरे को डेल्टा दिख रहा है, तो वो डेल्टा को मैं लिखूंगा एज अ सम ऑफ द absorption. The absorption could be release also of heat, that has to do with the heat capacity, and the generation if there is any. ठीक है. तो और ऐसा ही y और z में भी हो रहा होगा. ठीक है. तो ये इसलिए 3-dimensional इक्वेशन बनेगा हमारे पास. y में भी कुछ करंट होगा और y का करंट भी y का फंक्शन होगा, और सिमिलरली z में. ठीक है. मेक सेंस. तो आई थिंक तुम लोगों को आउटलाइन तो समझ ही गया है, बस इसको लिखना है हमको. तो वो हम ऐसे करेंगे कि वी विल से दैट दी heat current entering the thing at x I will call ix. ठीक है ना. So that is the heat entering per second from the x direction on the left face, right? Let me also write it this way actually. x में x plus dx से जो heat current निकला
विच इज हीट कमिंग आउट ऑफ द राइट फेस पर सेकेंड, माइनस एक्स पे जो हीट घुसा था, ये एक पॉजिटिव अमाउंट ऑफ हीट है, प्रोवाइडेड मैं मान रहा हूं कि आई एक्स प्लस डी एक्स इज बिगर देन आई एक्स, तो ये अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास रह गया अंदर, बराबर। सिमिलरली आई वाई प्लस डी वाई माइनस आई वाई, अगर इफ एट ऑल देयर इज अ वेरिएशन इन वाई ऑल्सो, एंड आई जेड प्लस डी जेड माइनस आई जेड, बराबर। अगर मैं इन सबों को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, इन द सेंस ऑफ आई एम सेइंग आई एक्स प्लस डी एक्स इज ग्रेटर देन आई एक्स, and iy plus dy is greater than iy, and iz plus dz is greater than iz. So this at this point is the total heat from the current that this control volume has taken per second, बराबर। अच्छा, अब अगर जनरेशन भी हो रहा है उधर, तो वो भी एक एडिशन हो जाएगा हीट का इस मटेरियल के लिए। तो जनरेशन को कैसे लिखेंगे? जनरेशन को लिख देंगे हम, लेट्स से कि वहां पे क्या सिंबल लिया जाए? जनरली जो स्टैंडर्ड सिंबल इसके लिए होता है वो क्यू डॉट होता है, तो मैं क्यू डॉट ही ले लेता हूँ। क्यू डॉट का यहाँ पे मीनिंग है हीट भी नहीं, पावर पर टाइम है, थर्मल पावर जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। मटेरियल में अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ थर्मल पावर जनरेट हो रही है पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड ऑब्वियसली थर्मल पावर है, ठीक है। दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल दैट करंट मूविंग इन, एंड दिस इज आल्सो बाय द वे potentially different in different places and keeps changing with time, right? अब रियलिटी में करंट भी हो सकता है चेंज हो रहा हो, या अलग अलग जगह पे मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग हो। एकदम जनरलाइज्ड हम कंडीशन ले रहे हैं ना अभी, ये बाद में ठीक है फिर हम कर सकते हैं लेटर, वी कैन से ओके द मटेरियल इज एवरीवेयर होमोजेनस और व्हाटएवर, दैट्स अ कंडीशन यू कैन पुट लेटर। तो अगर ये हो रहा है थर्मल पावर जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मेरे को dx dy dz से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा ये जो जनरेशन से हीट अपने को मिल रहा है इधर इसी जगह पर सेकंड, वॉल्यूम तो कट गया, तो टोटल जो हमें हर सेकंड में जनरेशन के कारण हीट हाथ में आ रही है वो है ये क्वांटिटी, और ऊपर जो 6 टर्म्स लिखे हुए हैं वो है जो, क्योंकि हम किसी फ्लो के रास्ते में बैठे हुए हैं जो तीनों डिमेंशन में चल रहा है, तो उसमें से हम जितना उठा ले रहे हैं वो क्वांटिटी है ऊपर के। सर इनटू dt भी होगा? नहीं, तो ऊपर भी तो पावर ही है ना, वो तो करंट ही है, तो dt। हाँ ठीक, पर ये पूरा इक्वेशन पर सेकंड लेवल पर है अभी, ठीक है, फाइन। एंड ऑल ऑफ दिस will be causing what? Will be causing my temperature to change. I am the control volume. That's it, right? Conservation of energy तो लिखना है, कहाँ जाएगा? अगर ये सब हीट तुमने उठा लिया तो हीट का कंजर्वेशन ये कहता है कि भाई तुम गर्म हो जाओगे, what else can happen? So that would mean that सर टेम्परेचर घट जाएगा ना? नहीं, क्यों? सर जितना x में बाहर जा रहा है that is more than what is coming in. अच्छा, मैंने वैसे लिख दिया ना, इसको बाहर जाता हुआ लिख दिया है। हाँ सर, ठीक है, तो एक काम कर लो, माइनस प्लस कर लो, बराबर। फाइन, ये हो गया। तो अब जो है मेरे को क्या करना? माइनस क्यू डॉट हो जाएगा। नहीं, माइनस क्यों हो जाएगा तभी? सर वो जनरेट हो रहा है तो बेसिकली वो टेम्परेचर को घटा रहा है ना? नहीं, ये जनरेशन मेरी हीट में से नहीं, वही मैं बताना चाह रहा था, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट चीज है। ये जनरेशन किसी मैकेनिज्म से हो रहा है कि भाई करंट चल रही है, तो करंट जब यहाँ चल रही है तो मैं जहां बैठा हूँ कंट्रोल वॉल्यूम में, वहां पे करंट के चलने से उस जगह लोकली करंट की एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच इज अ नॉन थर्मल,
some other form of energy is being converted in this region into heat. मेरा जो लॉस ऑफ एनर्जी है या गेन ऑफ एनर्जी है वो तो मैं अब लिखूंगा mc डेल्टा टी. मतलब अगर मैं लिटरली मान लो जनरेशन नहीं हो रहा होता तो मेरा अपना जो मैं अपना जेब में से हीट निकाल के देता किसी को तो मैं ठंडा हो जाता, तो वो तो मैं mc डेल्टा टी से mc dt by dt से ट्रैक कर लूंगा. वो हो गया लिटरली माई थर्मल कंटेंट. बट that's a separate thing. But also there is some other mechanism in play where it's maybe some kind of a chemical reaction is occurring everywhere in the region. So the chemical bonding ka energy is converted everywhere locally per second per unit volume into heat, or there is electrical energy being converted into heat. Whatever is happening, some heat is being produced everywhere. So it is also being produced in the control volume, and I get it. Where will it go? Then it will increase the temperature. It will increase the temperature. So ऊपर वाले जो 6 टर्म्स है वो है जो मैंने फ्लो में से उठाया, राइट? ऊपर वाला सर नीचे वाला इंटरनल मैकेनिज्म. हाँ, वो उस जगह पे कोई प्रोसेस हो रही है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम अ नॉन थर्मल, सम कन्वर्जन इज अकरिंग ऑफ सम नॉन थर्मल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी. दिस इज एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म. ठीक है? और ये सब मिलके मेरा हीट कंटेंट को यानी मेरी जेब में जो है उसको चेंज करेगा. मेक सेंस? तो राइट साइड पे मेरे को क्या लिखना है फिर? मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और dt by dx प्लस बराबर. dt by dy. तो अब मेरे को लिखना पड़ेगा कि अगर डेंसिटी इस मटेरियल का रो है, ठीक है, विच ऑल्सो इन द मोस्ट जनरल केस वुड बी दिस. Generally speaking, it would not be a function of time, but it can reasonably be a function of location. And then if I multiply it to dx dy dz, that's the mass in the control volume. Then if I multiply it to the heat capacity, which again, if the material is non-homogeneous, could vary from place to place, could also vary from time to time, but that's also usually not the case. Although usually heat capacity is a function of temperature, but not such a strong function of temperature. And then it is all causing me to become hotter. Fine. This is also XYZ T. मतलब वो लिख लो यहाँ पर होगा. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन. समझ में आ गया ये इक्वेशन? यस सर. ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि मैं इसमें से, अच्छा दूसरी चीज मैं ये करूंगा कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने इतना सारा भूमिका बांध दी ऑलरेडी कि सेकेंड डेरिवेटिव आने वाला है, तो तुम देख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ क्वांटिटी है, हम ये लिख सकते हैं ना, इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि I at x प्लस dx माइनस I at x is the same thing as di by dx, del I by del x times dx. You understand? ये समझ रहे हो? यहाँ ये देखना है तुम्हें कि ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव है, ये एक तरीके का फंक्शन लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई टू द स्टेप साइज. पार्शियल डेरिवेटिव जो है आई का वो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा. जब तुम उसमें एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो वाई और जेड में उसको सेम रख रहे हो, और फिर तुम उसको एक्स के स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो कि इतना से चेंज हो गया हो. ये समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. ठीक है ना? तो तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्वांटिटी को इधर डाल सकते हैं, ऐसा ही उधर में कर सकते हैं, ऐसा ही उधर में कर सकते हैं, है ना? कर लेते हैं. ये करने के लिए ये करना होगा कि एक्चुअली ऐसा करते हैं, हम हीट में बनाने वाले हैं ना, हीट में बनाने वाले हैं पूरा इक्वेशन, करंट में नहीं बनाने वाले हैं, टाइम में और हीट में बनाने वाले हैं. यहाँ तो हीट में लिखा हुआ ही है, हीट का टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे टेम्परेचर का टाइम डेरिवेटिव है. तो एक्चुअली ये तो करंट लिखा हुआ है, करंट तो खुद ही हीट का टाइम डेरिवेटिव होता है ना?
तो बेसिकली ये बस सेकंड डेरिवेटिव में बन जाएगा. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू कुड वेरी वेल से दैट दिस इज द सेम थिंग एज डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी एक्स, dq by dt, sorry, not x, at x plus dx minus dq by dt at x. ऐसा नहीं है, x plus dx पे क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, I mean, थोड़ा नोटेशनली गलत हो गया. ऐसा है कि उसका वैल्यू एट दैट लोकेशन माइनस उसका वैल्यू एट दैट लोकेशन इज वैल्यू ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव नहीं सॉरी, टाइम नहीं, एक्स में लेना पड़ेगा ना, क्या मैं लिख रहा हूँ. ये बनेगा सेकेंड डेरिवेटिव इन एक्स ऑफ क्यू. Basically I can say that this is the same thing as d2q by dx square times dx, है ना, बराबर. Yes, sir. And the same goes for y and z, all of them. Fine. Yes, sir. तो अब what I need to do is I need to साइन चेंज हो जाएगा बस. क्या चीज, साइन का, हाँ साइन चेंज करना है वो तो ठीक है, हम डाल देंगे उसको. अब मुझे क्या करना है कि एक्चुअली ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है ना. अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा भी फॉर्मली नहीं करने की जरूरत है, थोड़ा वो कर लेते हैं, सीधे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं ना. मेन पॉइंट ये है कि अब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, बराबर. करंट का डेफिनेशन क्या है, हमें डेफिनेशन इन द सेंस ऑफ फूरियर लॉ क्या कह रहा है कि करंट जो है एट सम प्लेस इज माइनस के ए एंड द स्पेशल डेरिवेटिव एट दैट प्लेस. तो मीनिंग टू से कि आई कैन बेसिकली से दैट दिस क्वांटिटी is simply minus k dt by dx at x plus dx. फाइन, तुम समझे. प्लस ka dt by dx at x. Yes, sir. तो वो क्या हो गया, इसको जाने दो कि ये क्या था. ये चीज मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं उधर, ये चीज को, बल्कि इनफैक्ट ये चीज को करने वाला हूँ, राइट. तो यही चीज को करने वाला हूँ आई सपोज, है ना. ठीक है, फाइन. Yes, sir. ऐसा ही वाई और जेड में करने वाला हूँ. बट ये जो लिखा हुआ है, तो थोड़ा इसको करेक्ट लिख देते हैं ताकि, बट दिस इज द सेम एज दिस फ्रॉम Fourier's law एंड सेम इन वाई एंड जेड. तो ये तुम कह सकते हो इज द सेम थिंग एज के ए d2t बाय dx स्क्वायर टाइम्स dx. समझे. Yes, sir. dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है dt by dx at x plus dx minus dt by dx at x over dx is the second derivative of temperature with x. तो ये लिखा हुआ है क्वांटिटी यहाँ पर. इसमें भी एक चीज है कि जब मैं इतना अभी ओपन एंडेड रख ही रहा हूँ कि भाई डेंसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्लेस, heat capacity is also a function of place, generation is also a function of place, then quite possibly and often the conductivity is also a function of place. अगर फिर ये बोलेंगे लास्ट में बोलेंगे होमोजेनस है तो फिर ठीक है, वो के सब में से बाहर निकल आएगा. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस के इज बेसिकली द कंडक्टिविटी.
And you have to keep in mind that this is, in a sense, not just conductivity in X and Y and Z, but conductivity is a kind of a directional property. So it is the conductivity in the X direction. You understand what I'm saying? Yes, sir. Like it is different. Thermal conductivity is slightly different from something like density. Density is in a sense a true scalar because it's just a value at a place. I mean, it could differ from place to place, but it's still just a value. But conductivity has at some place, it has basically 3 values. It could differ from place to place, but at any place also, it differs in direction. Like if you go to a certain XYZ and then say, what is the conductivity? That's not a well-defined question. You also have to say, are you going to conduct in X direction? And if the material is not isotropic, this is what is meant by what is called the material being anisotropic. Homogeneity or homogeneousness or whatever has to do with something like, is the value of the property that's the same at every X, Y, Z. Isotropicity of a material has to do with, is the property the same in every direction? So some properties like conductivity, which are fundamentally directional quantities, they have to do with how easily this material conducts heat in the X direction, is a directional property. Okay, so this is basically the conductivity in the X direction at this location. समझ गए तुम लोग क्या कह रहा हूँ? I have to be, if I'm being very particular, I have to say this is the X conductivity at this location. Make sense? Sir. Yes. So अगर रो हम x y z का फंक्शन ले रहे हैं तो लैटिस ऐसे भी चेंज हो रहा है with x y z and z. तो k तो पक्का ही होगा ही x और y z का फंक्शन. हाँ, इन जनरल तो है, वो तो होता ही है कि I mean non-homogeneity usually comes with anisotropy. But also, I mean, it depends. But the other way around can also be. I mean, you can have exceptions in the other scenario because a material can be homogeneous and yet be anisotropic because उसका internal structure इस type का है कि किसी direction में, for example, polarize कर रहे हैं हम तो, जैसे dielectrics पढ़ते हो तो dielectric का polarization जो है, when you apply an electrical field on it, तो it might be the case कि उसका जो atom है, उसका जो electronic structure है, वो इस तरीके का है कि वो एक डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड को ज्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट कर पाता है, तो उतना स्ट्रांगली पोलराइज नहीं होता है, और दूसरा डायरेक्शन में इजीली पोलराइज होता है, तीसरा डायरेक्शन में समवॉट इजीली पोलराइज होता है. तो जब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगेगा तब तक सब कुछ सिमेट्रिक है. तो वैसे तो होमोजेनिटी है, but they're not so correlated in the sense they're kind of quantifying different effects. It looks the same everywhere. So once you go from one place to another place, you can't tell whether you have moved. That's homogeneity. But it could very well be anisotropic. And in fact, that usually is the case. And that creates the situation where if you apply some, मैं polarization का example लेके बोल रहा हूँ, मगर conduction के लिए भी valid है, कि अगर तुम सोचो कि एक material है जिसका kx, ky, kz, मतलब इसकी conductivity जो है अलग अलग directions में अलग अलग है. It conducts very well in one dimension, but conducts poorly in the other dimension and conducts somewhat in the third dimension. But now you apply the heat source and heat sink in a way that they are not either along x or along y or along z. I mean, they don't align with x or y. कुछ off vector पे तुमने source और sink लगा दिया. तो अल्टीमेटली जो हीट फ्लो होगा वो किसी भी डायरेक्शन पे जो हीट करंट होगा वो फिर लोकली टेम्परेचर के साथ अलाइन नहीं होगा. ये समझ रहे हो? यस सर. मतलब नॉर्मली ये है कि हीट फ्लो टेम्परेचर के डायरेक्शन से होता है. टेम्परेचर जिस तरफ फॉल कर रहा होता है उस तरफ हीट जा रही होती है, स्टीपली जिधर टेम्परेचर फॉल कर रहा होता है. लेकिन अगर एनाइसोट्रॉपिक है और कंडक्टिविटी अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग है, तो लोकली हो सकता है कि भाई मैं 45 डिग्री पे जाऊं तो इस नेबरहुड का सबसे ठंडा पॉइंट मेरे को मिलता हो, so that if I imagined heat flow, the heat should have gone there, but I find that the heat is going at 30 degrees because there is more conduction in the x direction, and so that biases
in one sense, that it's poorly conducting in the y and z, but it's very conducting in x, and so that has an effect, so that it pulls the current away from where it would have gone if the material was completely isotropic. So then the heat current will not align with the temperature gradient, which is why यहाँ पे temperature gradient के साथ ही multiplied है उसका local के, है ना, दोनों का ही effect आएगा साथ में. तो anyway ये हो गया, और ऐसा ही y और z का भी स्टोरी होगा इसका. तो अब हम ये घुसा देते हैं यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, बराबर. तो देयरफॉर ऊपर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो हो जाएगा ये पूरा कहानी, और ऐसा ही y और ऐसा ही z में आ जाएगा और सब समअप हो जाएगा. राइट, कर देता हूँ मैं. मेरे पास आ जाएगा kx xyz d2 t by dx square times dx. यही आया, है ना. एरिया मिस हो गया ना, एरिया 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 तो चाहिए होगा, तभी तो dy dz आएंगे. एरिया तुम समझ रहे हो, dy dz क्यों होगा यहाँ पर? सर x में कंडक्ट कर रहा है तो yz के प्लेन से बराबर जाएगा ना. बराबर, x में कंडक्ट हो रहा है तो yz नॉर्मल है उसका प्लेन, y में कंडक्ट हो रहा है तो xz नॉर्मल है. तो बेसिकली क्या है कि ये आ जाएगा अपने पास dx dy dz इधर भी. सिमिलरली ky at xyz d2 t by dx square and then dx dy dz plus kz xyz d2 t by dx square d2 t by dy2 by dx dy. सर dv दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे. हाँ, दोनों साइड से उड़ा देंगे. प्लस यहाँ पर मेरे पास है जनरेशन जो खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन है, पॉसिबली टाइम का फंक्शन है, dx dy dz. और लास्ट में मेरे पास है इधर रो जो खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, हीट कैपेसिटी जो खुद एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, टेम्परेचर का टाइम रेट चेंज और dx dy dz. राइट, तो बेसिकली हो ही गया है. अब इसको ये लिख लेते हैं हम, ये उड़ा दो सब में से. सही है. एंड अब मैं यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है. अजम्पशन में ले रहा हूँ होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक. मतलब जनरलाइजेशन तो ये है जो लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है अब क्या है, मतलब फाइन, ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम जो सॉल्विंग हम कर रहे हैं उसमें. तो अगर होमोजेनस और आइसोट्रोपिक ले लूं तो बेसिकली रो सी एंड के will cease to be functions of x, y, z because it's homogeneous, and kx, ky and kz will all be equal at every x, y, z because it's isotropic. तो वैसा लेने से क्या होगा कि मैं पूरे में से k से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा d2t by dx square plus d2t by dy square plus d2t by dz square plus जनरेशन बाय k इक्वल्स, और कन्वेंशनली इसको ऐसे लिख देते हैं, where this quantity alpha which is just k by rho c, है ना, is a specific property of the material. It has to do only with this material in which you are sitting. It's the conductivity divided by the density and the heat capacity is called the thermal diffusivity of this material. So, और ये बेसिकली तुम्हारा हीट इक्वेशन हो गया. ठीक है, दिस इज द 3 डायमेंशनल
heat equation with generation and non-steady state, like the most general situation possible. I mean, other than short of homogeneity and isotropicity, like I mean वो हटा दिया है, but ठीक है, fine. Yes sir. तो जो हम लोग जेई में पढ़ते हैं वो इसका वो वाला केस है जिसमें जनरेशन नहीं है, तो ये Q डॉट 0 है, और स्टेडी स्टेट है तो dt by dt भी 0 है, और वन डायमेंशनल है तो d2t by dy स्क्वायर और d2t by dz स्क्वायर भी 0 है. तो हमारा जो जेई वाला जो स्टोरी है वो ये इक्वेशन है. तो अगर d2t by dx स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है कि dt by dx कांस्टेंट होगा. यही कांस्टेंट है I by k, है ना. Yes sir. ठीक है, तो एक्चुअली आज इतना ही करेंगे. अब नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके ये देखेंगे कि जब अलग अलग एक दो केसेस देख लेंगे कि अगर जनरेशन हो रहा है या स्टेडी स्टेट नहीं है क्या है तो क्या होगा. सिंपलर सिचुएशन तो वो है कि स्टेडी स्टेट है तो एटलीस्ट राइट हैंड साइड 0 है, फिर जनरेशन हो रहा होगा तो वो ठीक है क्योंकि वो एटलीस्ट कांस्टेंट है. अगर जनरेशन हो रहा होगा तो फिर वो एक सॉल्वेबल इक्वेशन है जो हम कर सकते हैं सॉल्व इजीली, केवल स्पेस बेस्ड इक्वेशन है. और दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग होता है, और वो ऑब्वियसली आई मीन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक फंडामेंटल फीचर होता है उनका बाउंड्री कंडीशंस और उनका इनिशियल कंडीशंस. तो उससे काफी गवर्न होता है कि आउटकम क्या निकलेगा. मतलब इक्वेशन तो सेम है, फिक्स्ड इक्वेशन यही है, लेकिन किस टाइप के बाउंड्री कंडीशंस लगे हुए हैं और किस टाइप का इनिशियल कंडीशन था वो डिटरमिन करेगा कि इवॉल्व कैसे करेगा ये सिस्टम, लाइक इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये बेसिकली एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है. this is the way the system evolves over space and time. So but the boundary conditions and the initial conditions have a very strong role to play. Even with the same equation, with a different set of boundary conditions or with a different initial condition, you get a very you can potentially get a very different outcome. ठीक है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, बस अगली बार कंटिन्यू करते हैं फिर. सर हाँ बोलो. पूछना था सर, ओलंपियाड में रिलेटिविटी है क्या? हाँ ओलंपियाड में है, इंटरनेशनल ओलंपियाड में होता है, उससे पहले नहीं है. लेवल 1 लेवल 2 में नहीं होता है. ओके सर. मतलब अभी NSCP जो है उसमें नहीं होता है, और उसके बाद जो स्टेज 2 है उसमें भी नहीं होता है. अब जब इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाते हैं फिर उधर होता है. तो जेई में होता है? नहीं, जेई में भी नहीं होता है, जेई में भी नहीं होता है. तो स्टेज 1 स्टेज 2 का पोर्शन सेम होता है, बस डिफिकल्टी अलग होता है. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सेम होता है, और वही पोर्शन होता है जो जेई का होता है प्रीटी मच. और सर अभी जो NSCP होगा उसका लेवल IOQP से ज्यादा होगा या कम होगा, मतलब फर्स्ट स्टेज IOQP? वैसा ही होगा, सिमिलर ही होगा. मतलब NSCP जनरली इजियर होता है. तुम पीछे के NSCP देखो, या IOQP तो एक ही बार हुआ था अभी. बाकी तो NSCP जो होता है वो जनरली सिंपल सा ही पेपर होता है. अगर तुम पीछे के देखोगे 19, 18, 17 के, हाँ मतलब सिलेबस अगर हो गया है जेई का और ठीक से कर लिया है, कुछ ऐसा छोड़ा वोड़ा नहीं है, तो वो सब बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि वेव है, दो सुपर पोजिशन बताओ, एम्पलीट्यूड कितना होगा, वेव ऑप्टिक्स के बेसिक क्वेश्चंस, उस टाइप से. सर तो कट ऑफ हाई होता है क्या? हाँ कट ऑफ तो हाई होता ही है, बट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. ठीक से अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे, कोई ऐसा नहीं है. ठीक है सर. ठीक है, ठीक है, चलो फिर. ऑलराइट, थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू, बाय बाय.